वैष्णवी धावले और आप देख रहे हैं नंबर 1 सिटी न्यूज चैनल। सिटी न्यूज की हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचारों। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning, hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of left, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. तबियत बिगड़ जाने के चलते उसे जिला सामान्य अस्पताल में आरोपियों व कैदियों के लिए बताए गए विशेष कक्ष में रखा गया, जहां पर पुलिस गार्ड भी तैनात किए गए हैं। इधर एसीबी द्वारा लेवेटकर के घर की जांच पड़ताल की गई, जिसमें लेवेटकर के घर से 50 ग्राम सोना बरामद किया गया। यह सोना कब खरीदा गया, इसके दस्तावेज एसीबी द्वारा खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही एसीबी द्वारा इस बात को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या लेवेटकर ने अपने सेवा काल के दौरान गैर कानूनी ढंग से कोई संपत्ति खरीदी है। यदि लेवेटकर व उसके परिजनों के द्वारा गैर कानूनी ढंग से बेनामी संपत्ति खरीदने का मामला सामने आया है, तो इस मामले को लेकर भी लेवेटकर के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में भारी बारिश ने गुलाब तूफान के प्रभाव से किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मराठवाड़ा और विदर्भ में हताहत और वित्तीय नुकसान हुआ है। सांसद नवनीत राणा ने
मुआवजे और सहायता के मुद्दे पर राज्य सरकार को चेतावनी दी है। राणा ने कहा कि बारिश से किसानों के पास कुछ नहीं बचा है और मातोश्री पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आराम से बैठे हैं। इसलिए अगर किसानों की दिवाली अंधेरे में जा रही है तो हम आपकी आने वाली दिवाली को खुश नहीं देंगे। नमस्कार। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में जो बारिश, बहुत तेज बारिश और बहुत बड़ा तूफान बारिश का हमारे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और विदर्भ में अगर हम देखते हैं तो खेतियों की खेती पूरे 0% भी हाथों में कुछ किसानों के आने वाला नहीं है। कई लोगों के घर पानी में बह के चले गए, कई लोगों की दुकानें पानी में बह के चले गए और आज हमारे महाराष्ट्र के किसानों को हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की साथ और उनकी मददी का हाथ की जरूरत है। पर मुख्यमंत्री अपने मातोश्री में बैठकर मस्त हैं और बाकी हमारे पूरे महाराष्ट्र में किसान से लेके हर एक व्यक्ति बहुत त्रस्त है। तो मैं मुख्यमंत्री साहब को विनती करूंगी कि आने वाली दिवाली से पहले उनको मददी का हाथ इस दिवाली के पहले उनको किसानों को पहुंचना चाहिए, जहां पे प्रत्येक हेक्टर 30,000 रुपए प्रति किसानों को ये मिलना चाहिए। मैं इतनी विनती ये मुख्यमंत्री साहब से करती हूँ कि अभी तो आप अपना मातोश्री का घर छोड़िए और किसानों के खेतों में जाकर किसानों से बात कीजिए, उनकी परेशानियां सुनिए, उनको क्या मदद करना चाहिए उसका निर्णय लीजिए। आज मुख्यमंत्री उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, ना कि मातोश्री में बैठकर अपनी जिंदगी का आराम लेना चाहिए। हमारे किसान महाराष्ट्र के बहुत ज्यादा संकट में है, उनके संकट में ऐसे मुख्यमंत्री आपने बाहर निकल के उनका साथ देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो ये दिवाली हमारे किसानों की सुख में नहीं गई तो मुख्यमंत्री की भी सुख में ये दिवाली हम जाने नहीं देंगे। इतनी विनती करती हूँ मैं आपको। विधायक रवि राणा ने कहा कि मराठवाड़ा में इस समय भारी बारिश हो रही है, किसान तबाह हो गए हैं, विदर्भ के किसान भी संकट में हैं। बडनेरा से निर्दलीय विधायक रवि राणा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री ठाकरे विदर्भ और मराठवाड़ा का दौरा करें और किसानों को तुरंत मदद करे। प्रभावित जिलों में अभिभावक मंत्री और कृषि मंत्री नजर आ रहे हैं। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री मातोश्री बाहर नहीं जाते। गेल्या 3-4 दिवसापासून पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पाण्याचा हाहाकार मचलेला आहे। मराठवाड्यामध्ये गंभीर परिस्थिती आहे। प्रत्येक तालुका, गावामध्ये, जिल्ह्यामध्ये पाण्याच्या हाहाकारामुळे संपूर्ण गावाचे गाव उद्ध्वस्त झाले, शेतकऱ्यांचे पिकं उद्ध्वस्त झाले, जमिनी उद्ध्वस्त झाल्या। आज लोकांना घरामध्ये खाण्यासाठी अन्नधान्य सुद्धा नाही आहे। अशी परिस्थिती मराठवाड्यामध्ये, विदर्भामध्ये, अनेक जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा कहर आपल्या डोळ्यासमोर दिसत आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने पाऊस पडला आणि मराठवाड्याची स्थिती तर आजची खूप खराब आहे आणि विदर्भातल्या अनेक जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांची परिस्थिती खराब आहे। शेतकऱ्यांच्या कठीण परिस्थितीमध्ये शेतकरी हा संकटामध्ये सापडलेला आहे। अशा परिस्थितीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना माझी परत विनंती आहे की वारंवार निसर्ग हा शेतकऱ्यांच्या खऱ्या अर्थानं शेतकऱ्याच्या आजूबाजूला फिरत आहे। शेतकऱ्यांवर जे संकट आलेलं आहे पण मराठवाड्यामध्ये, विदर्भामध्ये अजूनपर्यंत मुख्यमंत्र्याचा पाय सुद्धा पडला नाही। म्हणून मुख्यमंत्र्यांना अजून पुन्हा विनंती आहे, कळकळीची विनंती आहे, या शेतकऱ्यांच्या वतीनं जे आज ज्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे अशा शेतकऱ्यांना तातडीची मदत द्या। स्वतः शेतकऱ्याच्या बांधावर जा। तुमचा कृषी मंत्री कुठे आहे ते दिसत नाहीये, तुमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री कुठे आहेत ते दिसत नाहीये, मुख्यमंत्री मातोश्रीच्या बाहेर निघायला तयार नाहीये। आता या अशा संकटामध्ये वारंवार जर राज्याचा मुख्यमंत्री जर बाहेर निघत नसेल तर मला असं वाटते हे महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य आहे। येणाऱ्या काळामध्ये दिवाळीच्या आधी जर शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये पैसे पडले नाही, हे नुकसान भरपाई जर ताबडतोब त्यांना दिली नाही मराठवाड्यामध्ये, विदर्भामध्ये, तर शेतकरी येणाऱ्या काळामध्ये मातोश्रीवर याल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। मातोश्रीवर नक्की शेतकरी पोहोचतील आणि मुख्यमंत्र्यांची दिवाळी खराब करतील। तो आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मिलेंगे। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अमरावती महानगरपालिका अमरावतीतर्फे शहरातील वाढत्या रुग्णांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे। सदर कक्षामध्ये रुग्णांच्या घरामधील व्यवस्था, स्वातंत्र्य कक्ष, त्यांना असलेली लक्षणे, ताप, सर्दी, खोकला, ऑक्सिजन याबाबत माहिती द्यावी, तसेच आयसोलेशनचा फॉर्म भरण्याकरिता खालील दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा।
संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक के बाद दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आप सिटी न्यूज पर अपने प्रोडक्ट के, शॉप के, शोरूम के जन्मदिन के विज्ञापन अत्यल्प शुल्क पर दे सकते हैं। इसके लिए हमारे विज्ञापन विभाग से इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर 9370067111। परतवाड़ा जुड़वा नगरी अलग अलग किस्से कहानियों के लिए मशहूर है। बुधवार को यहाँ सेक्स रैकेट पकड़े जाने का हड़कंप मचा है। तत्पर जनता ने अश्लील हरकतें करते प्रेमी युगल को पकड़ा। मौका देखकर प्रेमिका भाग गई और पब्लिक ने युवक पर हाथ साफ करते हुए पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने संबंधित युवक और लॉन्च मालिक को हिरासत में लिया है। आज दोपहर परतवाड़ा पुलिस ने शहर के जयस्तंभ चौक से लेकर दुरानी चौक के बीच अति व्यस्तम परिसर के टेकड़े कॉम्प्लेक्स में छापामार कार्रवाई करते हुए वहां मौजूद एक युवक को अश्लील अवस्था में पकड़ने की खबर मिल रही है। पुलिस ने घटना में लिप्त युवक को हिरासत में ले लिया है। युवती मौका वारदात से भागने में सफल होने की जानकारी है। पुलिस ने फिलहाल पकड़े गए युवक और इस कॉम्प्लेक्स के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे के करीब ये मामला है। बताया जा रहा है कि शहर के अति व्यस्तम परिसर में स्थित टेकाड़े कॉम्प्लेक्स के तीसरे माले पर कुछ 8 और 10 रूम बने हुए हैं। सामने से इस कॉम्प्लेक्स का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से काले कांच से पैक किया हुआ है। यहाँ स्कूल कॉलेज के छात्रों को ये रूम भाड़े से दिया जाता है, मगर फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद यहाँ ये लोग कैसे आए, इस बात को लेकर आसपास के लोगों को शक हुआ। बताया जाता है कि पहले इन लोगों ने इस युवक को अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा और युवक की खूब पिटाई की और किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने इस संदर्भ में बताया कि इस घटना में किसी ने शिकायत नहीं की। फिर भी पुलिस विभाग की ओर से होटल संचालक और युवक के खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई की। परतवाड्याचे गरीब नवाज मस्जिद चौक येथे काही घटना झाली, लोक जमाव झाला, काय त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन आम्हाला आली आणि लागलीच आम्ही त्या ठिकाणी पोलीस पाठवले। थोडा एक संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्या ठिकाणी पोलीस लागली जाऊन तो विषय योग्यरित्या हाताळण्यात आला। या संबंधाने जे काही तक्रारी पोलीस स्टेशनला प्राप्त होतील त्याप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। आपण सर्वांना माझे आव्हान आहे की कोणी काही त्या संबंधाने सोशल मीडियावर किंवा इतर ठिकाणी जर काही माहिती एखादी पाठवत असेल किंवा एखादा चुकीचा निर्देश देत असेल तर त्याचं लक्ष देऊ नका। पोलीस या ठिकाणी सक्रिय आहे, कारवाई केलेली आहे आणि असे काही प्रसंग जे असेल ते शेवटी तक्रार कायदा हा प्रामुख्याने त्या ठिकाणी केला जातो आणि ज्या ठिकाणी तक्रार असेल तर ती निश्चितच त्याच्यामध्ये जी काही असेल ती कारवाई होईलच। आणि आता तो पूर्णपणे पोलीस त्या ठिकाणी लागलीच पोचल्यामुळे आणि विशेषतः पोलिसांना ज्या लोकांनी तात्काळ माहिती दिली त्यांचे धन्यवाद देतो। नाव काढणे योग्य होणार नाही, परंतु ज्यांनी माहिती दिली तात्काळ दिली आणि असेच जागरूकता जर असली तर निश्चितच आपण शहरामध्ये जे काही विघ्नसंतोषी लोक किंवा एखादा मोठा प्रॉब्लेम करणारे असले तर आपण तातडीने त्याच्यावर आपल्याला नियंत्रण करता येते। धन्यवाद। बडनेरा नई बस्ती के रहवासी उर्फी भाई ने गोवा में आयोजित थाई बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। प्रस्तुत है उनका साक्षात्कार। मोहम्मद आदिल यांचा आपण सिटी न्यूज चॅनलने सत्कार केलेला होता। पाचगणी येथे स्टेट लेवलची जे चॅम्पियनशिप होती त्यामध्ये त्यांनी आपले कोणता पदक सिल्वर मेडल प्राप्त केलं होतं आणि सिटी न्यूजने त्याची दखल घेऊन आपल्या चॅनलवर यांची मुलाखत घेऊन यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या आणि शुभेच्छा देऊन ते पुढील नॅशनल लेवल खेळण्याकरता गोवा येथे गेले होते आणि गोवा येथून त्यांनी सुद्धा हे आपण पाहू शकता हे सुवर्णपदक त्यांनी पटकावलेलं आहे। तर यांच्याबद्दल आपण जाणून घेऊ। आदिल भाई, आप जो बॉक्सिंग का जो छंद जो है जोपास रहे थे उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि आपके प्रशिक्षक कौन थे, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर प्रेरणा जब छोटे थे जब से सेंसाई ज़फ़र खान के पास हमने कराटे सीखा है। फिर कराटे को और थोड़ा सा मॉड्यूल करके उसे स्कूल गेम में लाकर जो इंडिया बॉडी है उन्होंने इसे स्कूल गेम में थोड़ा लाइट वेट करके लाइट कांटेक्ट करके इसको स्कूल गेम में लाया। फिर वो सेंसाई ज़फ़र खान, प्रवीण अड़कने सर और नागपुर के अजय खेड़कर सर, इनके सपोर्ट से ये आज ये मुमकिन हो पाया है। आपने ये नेशनल खेलने से पहले कौन से कंपटीशन में भाग लिए थे?
इसके पहले बॉक्सिंग की ट्रायल दी थी आदरणीय श्री सतीश भट्ट सर, इनके अंडर में। वहाँ भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं खेल पाया। और उसके बाद फिर नेशनल 2007 में विशाखापट्टनम में खेला था, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लगा था। फिर उसके बाद पूना में बालेवाड़ी में खेला है, वहाँ पे सिल्वर मेडल लगा था। फिर उसके बाद पाँचगनी में वहाँ पे सिल्वर मेडल लगा। फिर वहाँ से सिलेक्शन पाँचगनी में जो स्टेट लेवल की बॉक्सिंग कंपटीशन थी, वहाँ स्टेट में से कितने कॉम्पिटिटर थे, कितने कौन से स्टेट से लोग आए थे? वो तो सिर्फ स्टेट की थी, उसमें ऑल ओवर स्टेट से लोग आए थे। तो मेरे वेट में और 3 लोग थे। हाँ, उनको क्रॉस करके उनसे खेल के फिर मैं फाइनल बाउट में ये सिल्वर मेडल लगा था। उसके बाद आप नेशनल चैंपियन के गोवा गए, वहाँ के आप अनुभव हमारे सिटी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को शेयर कीजिए प्लीज़। वहाँ का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, और इसका श्रेय सब मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन सेंसाई जफर खान, प्रवीण अड़कले सर, अजय खेड़कर सर, इनको जाता है, जिनके संयुक्त तत्वाधान से ये संपन्न हो पाया। और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट रहा। हम महाराष्ट्र बॉडी के जो PY अत्तर सर हैं, उनके काउंसलिंग अच्छी रही, बड़ा अच्छा उनका एटमॉस्फेयर बनाया उन्होंने। ये पेंडेमिक के बाद भी इतना सफल टूर्नामेंट करना कोई मजाक बात नहीं, बहुत अच्छा। और इसका सर्टिफिकेट के बच्चों को फ़ायदा मिले, यही हमारी अच्छा है। अभी जो खेल में जो रुचि रखते हैं, जो अपन एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन के अलावा भी खेल होना चाहिए, इसके बारे में आप जो आने वाली पीढ़ी को, या तो कोई जो बच्चा खेलना चाहता और खेल के बारे में अपन क्या प्रेरणा देंगे, और वो खेल के फायदे क्या हो सकते हैं? स्कूल के बाद में अपन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में नौकरी के संदर्भ में उसके क्या फ़ायदा हो सकते हैं, ऐसा अपन क्या बताएंगे? आने वाले बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे? बिल्कुल, बहुत से फ़ायदे हैं सर। आप फिज़िकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं, और उसके बाद आपको जॉब के लिए बहुत सारी नेशनल के सर्टिफिकेट्स आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए काम में आते हैं। उसके बाद जॉब्स के लिए सर्विसेज में काम में आते हैं। आपके जब आप जॉब पे लग गए तो आपको ग्रेड बढ़ने में काम में आते हैं। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो बच्चों ने खेलना चाहिए, ग्राउंड पे टाइम व्यतीत करना चाहिए। ठीक है। हे होते मोहम्मद आदिल मोहम्मद जाफर उर्फी, त्यांनी महाराष्ट्र थाई बॉक्सिंग असोसिएशनच्या वतीने पार पडलेल्या गोवा येथे नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक प्राप्त केलेलं आहे। आणि त्यांनी एक तरुणांना एक प्रेरणा दिली आहे की एक मेसेज दिला आहे की बा कोणताही खेळ खेळला तर माणूस फिट राहतो, आणि त्याचे जे फायदे आहेत, जे सर्टिफिकेट मिळतात नोकरीत आणि आपल्या विविध जीवनाच्या आवश्यक ठिकाणी उपयोगी पडतात, असा संदेश त्यांनी दिलेला आहे। बडनेरावरून कॅमेरा पर्सन अशोक भाई जोशीसोबत मी मच्छिंद्र भटकर, सिटी न्यूज़ अमरावती। मेलघाट जिसे समस्या का माहिर कहा जाता है, तो वही मेलघाट पर शासन प्रशासन विशेष ध्यान देने के दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत किए जा रहे हैं दावों को की पोल खोलते जा रहे हैं। फिलहाल इन मार्ग के नव निर्माण सहित दुरुस्ती पर सरकार के अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी इन मार्ग पर आवागमन वाहन चालक जान हथेली पर लेकर करने को मजबूर बताए जा रहे हैं। मार्ग के गड्ढे को देखकर सड़क के भूमिगत होने का अनुमान जनता लगा रही है, जबकि इन रास्तों पर आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं दर्ज होने की बात सूत्रों ने की है। सड़कों के रखरखाव का जिम्मा उठाने वाले लोक निर्माण विभाग किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार तो नहीं कर रही? ऐसे सवाल भी मेलघाट में उपस्थित किए जा रहे हैं। आखिर कब सड़कों की सुधार लेगा लोक निर्माण विभाग, ये कह पाना कठिन है। बता दें कि धारनी से परतवाड़ा या फिर धारनी से भोकरबड़ी का मार्ग, इन मार्ग पर दिन रात यातायात बड़े पैमाने पर होता है। बीते कुछ समय से ये दोनों ही मार्ग बदहाल दयनीय स्थिति में बताए गए हैं। इन मार्गों से वाहन चलाना जान जोखिम में डालने के बराबर साबित हो रहा है। यही गड्ढों भरी सड़कों पर बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को दौड़ते देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो धारनी से परतवाड़ा 2.5 घंटे का एम्बुलेंस का सफर
दम तोड़ती सड़कों के कारण 4 घंटे का होने की चिंताजनक जानकारी सामने आ रही है, जिसमें एम्बुलेंस में गंभीर मरीज को रेफर करने में परेशानी खड़ी हो रही है। धारनी बोकरवाड़ी होते हुए मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल की ओर जाने वाला मार्ग भी बड़े खड्डों से भरा होकर स्थानीय लोक निर्माण विभाग लचर कार्य व्यवस्थाओं को जगजाहिर करता देखा गया है। इस ओर जिला प्रशासन से ध्यान देने की मांग मेलघाट वासियों ने की है। धारनी से शकील अहमद, प्रतिनिधि सिटी न्यूज। कुसुमकोट बुजुर्ग में देवी देवताओं की मूर्तियां विसर्जित करने के मामले अब धारनी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। जानबूझकर आदिवासी समाज के देवी देवताओं की मूर्तियां विसर्जित करने की घटना से गांव काफी तनाव दिखाई दे रहा है। धारनी तहसील के मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर बसे कुसुमकोट बुजुर्ग गांव में हनुमान जी के मंदिर से अनेक वर्षों पहले स्थापित की गई देवी देवताओं की मूर्तियां अचानक गायब होने के बाद गांव सहित समूचे परिसर में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद गांव के आदिवासी समाज द्वारा धारनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद गांव के ही कुछ लोगों ने आदिवासी समाज की मूर्तियां गणेश विसर्जन के दिन मध्य प्रदेश के शेखरपुरा यहाँ से बहने वाली विशाल तापी नदी में बिना पूछे विसर्जित की जाने की बात सामने आई। इस संबंध में कुसुमकोट बुजुर्ग गांव के आदिवासी समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों ने धारनी पुलिस थाने में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए मूर्तियों को विसर्जित करने हेतु तथा समूचे आदिवासी समाज की आस्था से खिलवाड़ करने के संबंध में दोषियों पे कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। शिकायत को मद्देनजर धारनी पुलिस उप विभागीय अधिकारी IPS गोहर हसन तथा पुलिस निरीक्षक सुरेंद्र बेलखेड़े के मार्गदर्शन में धारनी पुलिस द्वारा जांच कर विविध मामलों के तहत गुनाह दाखिल किया है, जिसमें कुसुमकोट बुजुर्ग निवासी श्याम शालिकराम जावरकर की शिकायत पर कुल 4 आरोपियों, जिसमें प्रद्युमन त्रिपाठी महाराज, लक्की कुमार, सुनील राठौड़, नितिन राधेश्याम मालवीय, योगेश हुकुमचंद मालवीय के खिलाफ कलम 295 34 बादवी IPC सह कलम 31R 31S 31T के तहत मामला दर्ज आरोपियों को अटक की कार्रवाई जारी थी। धारनी से शकील अहमद, प्रतिनिधि सिटी न्यूज। धारनी से 50 किलोमीटर दूरी पर पुलिस ने अवैध गोवंश यातायात कर रहे ट्रक पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से 22 गोवंश को जीवन दान दिया और ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। बुरहानपुर देरतलाई हवाई रोड पर बुधवार को खकनार पुलिस द्वारा देरतलाई से बुरहानपुर की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक MP 431908 का पीछा करते हुए खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम ढाबा में पकड़ा और खकनार थाने लाया गया, जिसमें कि ट्रक के अंदर कुल 22 गोवंश भरे हुए थे और जिसमें एक गोवंश की मौत हो गई। ग्रामीणों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद गोवंश को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया और पानी पिलाकर चारा खिलाया गया। आपको जानकारी दे दें कि खकनार तहसील क्षेत्र केले की फसल को लेकर प्रसिद्ध है। रोजाना इस रोड से कई वाहन केले से भरे क्रेट लाद कर लेकर गुजरते हैं, जिसका फायदा गोवंश तस्कर उठाते हैं। इससे पहले भी खकनार थाना द्वारा कई गोवंश से भरे वाहन पकड़े गए हैं। धारनी से शकील अहमद, प्रतिनिधि सिटी न्यूज। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा आराम से आ रहा है। वो भागेगा देखना, उसका सींग बहुत तेज है यार। वो भागेगा भैया, धीरे से आप पकड़ के लाओ, छोड़ना मत। वो पीछे का पैर बना, छोटा निकल जाएगा। पूरी बछड़ी है। आराम से उधर के तो निकालो भाई, डराते लाना है। अरे कोई बाल्टी लाके पानी पिलवाते यार, पानी पिलवाते रहो। मोटर चालू करो। रात में हो रही है, ताकत हो रही है। रात में हो रहा है काम ताकत से। इनको थोड़ा सीख लगाना चाहिए व्यवस्थित। पानी डालने से होश में आ रहे हमारे FRG की 70 साल में हो रहा है।
ये समाचार यही रोकते हैं, फिर एक बार मुख्य समाचारों की ओर। सिटी न्यूज केबल के अलावा यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी देख सकते हैं। केबल टीवी पर GTPL 73, सिटी केबल 92, ACN 98 सेटअप बॉक्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। यूट्यूब के अकाउंट को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। वैसे ही सिटी न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, ट्विटर पेज पर भी फॉलो करें। आप व्हाट्सएप पर भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप हमारे चैनल टीवी पर नहीं देख पा रहे हैं तो तरोताज़ा समाचार देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप फेसबुक पर भी ताज़ा समाचार देख सकते हैं। फेसबुक पर सिटी न्यूज़ के पेज को लाइक करें, साथ ही व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी ताज़ा समाचार देख सकते हैं। समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। आपको ये समाचार कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य है। और कोई जानकारी या सूचना देना हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय, मातोश्री आर्केड, सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारा नंबर 9403620111। सटीक एवं निर्भीक समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।